let's talk about God's promises of presence. और परमेश्वर की उपस्थिति की प्रतिज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। So we read another verse from Isaiah chapter 43 verses 2. यशाया 43 अध्याय से हम और एक वचन को पढ़ेंगे। It says, when you pass through the waters, I will be with you. परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू जल से होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। And when you walk through the fire, you'll not be burnt. जब तू अग्नि से होकर चलेगा तब वे तुझ पर तुझे झुलसा न पाएंगे। Amen. So these, the water and fire, what we are referring to are the problems in our lives. और ये आग और ये पानी वही है जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। You know, fire can burn you up, water can drown you. आग आपको जला सकती है और पानी आपको डुबा सकता है। But what God says, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? He walks with us even in those situations. परमेश्वर कहता है कि ऐसी परिस्थितियों से भी वो हमारे साथ चलता है। Where we go, God goes with us. जहाँ कहीं हम जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ जाता है। This is what He told Moses and Joshua, what we read in the Bible. यही उसने मूसा और यहोशू से कहा जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। So always remember that you are not walking alone. आप ये बात हमेशा याद रखना कि आप अकेले नहीं चल रहे हो। And God's always got your back. और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। Let us look at this beautiful promise again, which talks about the God's promises of purpose. दूसरी हम देखेंगे उद्देश्य की प्रतिक्रिया के बारे में। It says, go and make disciples. जाओ और चेला बनाओ। Right? So in this verse, it's very interesting because it has a mission and it has a promise. ये जो वचन है बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आज्ञा भी है और आपके लिए प्रतिज्ञा भी है। So what is the mission here? आज्ञा क्या है? The mission is for us to go आज्ञा हमारे लिए है जाकर and preach the gospel or make disciples. जाके सुसमाचार सुनाने के लिए या चेला बनाने के लिए। And what's the promise here? और प्रतिज्ञा क्या है? God says with you that I am with you always to the very end of the age. और प्रतिज्ञा यह है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। So that's the promise. और ये प्रतिज्ञा है। Right? So I just want to share a short story with you all. एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। It's not a Bollywood story. It's a story which happened in my life. ये कोई फिल्मों की काल्पनिक कहानी नहीं है लेकिन ये सच्ची कहानी है जो मेरे जिंदगी में हुई है। So I have this very good friend from Panjim. मैं पणजी से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। And you know, he recently got a call from his company saying that, you know, you have to shift to Bangalore and start working now. और कुछ दिनों पहले उसकी कंपनी से उसको एक कॉल आया कि आपको अभी बेंगलोर में जाके काम करना है। Because since COVID, he was working from home for that same organization. कि उसी कंपनी के लिए कोरोना टाइम से वो घर पर से ही काम कर रहा था। And now he was called to Bangalore. और अभी उसको बेंगलोर में बुलाया जा रहा था काम के लिए। So I was telling him, you know, why don't we just meet for a coffee? तो मैं उसको बोल रहा था कि क्यों ना हम एक कॉफी पर मिले। And he actually comes from an RC background. कि कैथलिक पृष्ठभूमि से आते हैं। He knows Christ, he believes in Christ, but he does not accept him. वो मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने उनको अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। So I had this opportunity to, you know, share with him. Like even Swarali was there with me. We're all good friends. और मुझे मौका मिला उसके साथ वचन बांटने का और मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। And trust me, he had like a lot of questions. और आप मुझ पर विश्वास करो कि उसके पास बहुत सारे सवाल थे। And God led me and Swarali with the answers which we were not even expecting that would come out, you know. अब परमेश्वर ने मुझे और मेरे पत्नी को ऐसे उत्तर दिए कि जिनकी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी कि हम बोल सकते हैं। It was God. वो परमेश्वर की ओर से हुआ। It was God who gave us the answers. वो परमेश्वर ने हमें वो उत्तर दिए।
It was God who used us. और परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया। So, at the end, और अंत में we just told we would like to pray for you. और हमने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। So, trust me, we were at a nice coffee shop in Miramar and we were all holding hands. और कॉफी मिरामार में एक बहुत अच्छे कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और हम सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े And what did we do? We prayed. और हमने प्रार्थना की। We prayed to God. हमने परमेश्वर से प्रार्थना की And trust me, by the end of that prayer, he was almost in tears. और वो प्रार्थना के अंत तक पूरा उसके आंखों में आंसू थे। So, what did we do here? We tried to make a disciple. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक चेला बनाने के लिए कोशिश की है। Even though we were not prepared for the questions, you know. हालांकि हम लोग उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, But God gave us the answers, लेकिन परमेश्वर ने हमें उत्तर दिए and that convinced him. और उन उत्तरों से वो सचमुच में वो संतुष्ट हुआ। वो So, what did we do here? We took one step, हमने क्या किया, हमने एक कदम बढ़ाया and God took 99. और बाकी के सारे कदम परमेश्वर ने बढ़ाए। And that's what this promise talks about, that He will be with us. और ये प्रतिज्ञा इसी विषय में बात करती है। The only thing what we need to do is open up our mouths वही जो हमें करना है, एक ही बात है कि हमें अपने मुंह को खोलना है and preach the good news. और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। We should not feel scared, you know. हमें घबराना नहीं है। What will this person ask me? What this person will think? वो ये व्यक्ति मुझसे क्या पूछेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। What if I sound insane in front of him? क्या अगर मैं एक पागल के जैसा उसको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है। Trust me, when you open up your mouth, God will send His words. आप विश्वास करो कि जब आप मुंह खोलोगे तो परमेश्वर आपके मुंह में शब्द डालेगा। The problem with us is we don't open up our mouths. समस्या यह है कि हम अपने मुंह को खोलते ही नहीं हैं। But God's promises says that He is with us. लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहते हैं कि वो हमारे साथ है। So we have to receive that promise. हमें उस प्रतिज्ञा को हमें ग्रहण करना अपने जीवन में। We have to receive it and implement it. हमें उसको ग्रहण करना है, उसके अनुसार चलना है।